Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Zelio E-Mobility Limited Q4 FY26 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Nitin Jain from Hem Securities. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Rutuja. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining Zelio E-Mobility Limited full year ended 31st March 2026 earnings call. Joining us on the call today from the management team, Mr. Kunal Arya, Managing Director of Zelio E-Mobility Limited. We will now commence the call with the opening thoughts from the management, post which we will open the forum for the Q&A session, where the management will be glad to respond to any queries that you may have. Before we move to the main call, I would like to read the standard disclaimer. So, there may be forward-looking statements about the company and its subsidiaries which are based on the belief, opinion and expectations of the company's management as on the date of this call. The company does not assume any obligation to update these forward-looking statements if those beliefs, opinions, expectations or other circumstances change. These statements are not guarantee of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. Consequently, listeners should not place any undue reliance on such forward-looking statements. With this, I hand over the call to Mr. Kunal Arya, Managing Director of Zelio E-Mobility Limited, to take it forward. Over to you, sir. Thanks, Nitinji, for the descriptive briefing. Good afternoon, everyone. I am Kunal Arya, Managing Director of Zelio E-Mobility Limited. We are engaged in manufacturing and assembling of electric two-wheeler and three-wheeler. And today I am not here to read you a script. I am here to tell you the truth. The unvarnished, number-backed, auditor-signed truth about what Zelio has built and exactly where this company is going. So let me get straight to it. When we started Zelio in financial year 2022, we posted a 12.89 crore in revenue. 1 year later, in financial year 2023, we nearly done 4 times that to rupees 51.25 crore, a growth of 297.5% in a single year. We then almost doubled that again to rupees 94.42 crores in financial year 2024. We crossed rupees 150 crore in our IPO last financial year 2025, closing at rupees 172.19 crore. And in financial year 2026, we have crossed rupees 300 crore, delivering a full year consolidated revenue of rupees 313 crore and 81.8% growth on already large base. From rupees 12.89 crore to rupees 313 crore in 4 years, that is revenue CAGR of approximately 121%. And I want every investor on this call to hear this clearly. Not a single quarter of losses. Not a single year of EBITDA burn. Every financial year since inception has been profitable. That is virtually unheard of Indian EV startup ecosystem, and we are enormously proud of it. On a consolidated basis, our financial year 26 revenue from operations stand at rupees 310.71 crore with a total revenue at rupees 313.68 crore. Our EBITDA for the year is rupees 38.01 crore at a margin of 12.2%, and that margin is expanding as operating leverage kicks in. Our profit after tax is rupees 28.39 crore, representing a net margin of 9.1%. Our consolidated net worth now stands at rupees 111.53 crore, a balance sheet fortified by our IPO proceeds and disciplined capital allocations. Our debt to equity ratio is mere at 0.18x. Our current ratio is 3.4x, giving us substantial firepower to fund the next leg of expansion without stretching our balance sheet. And our PAT has compounded at approximately 124% CAGR since financial year 2023. Our profits are growing even faster than our revenues. We have also maintained zero audit qualifications across every single audited financial year, FY23, FY24, FY25 and now FY26. 4 consecutive clean years. Zero investor complaints in the last financial year. That is kind of governance we run at Zelio.
The Indian EV two-wheeler market has two segments. The high-speed segment, Ola, Ather, TVS gets all the headlines, but India's low-speed EV segment is 8 to 10 lakh units per year, nearly 40 to 45% of total EV two-wheeler volumes. No license, no registration, no mandatory insurance. Price rupees 50,000 to 75,000. This is the vehicle of Bharat. The students, the homemakers, the gig workers, the tier 2 town residents. This is not niche. This is India. And the segment is growing at 20 to 25% per annum. Our 121% revenue CAGR against that industry rate tells you one thing clearly. We are not just riding this wave, we are leading it. In financial year 26, we went from one plant to four, and from 72,000 to 240,000, 240,000 units of annual capacity, a 3.3x expansion in a single year. Our Ladwa Haryana flagship anchors North and West India at 120,000 units. Our Cuttack Odisha plant 60,000 units fully operational, GST registered and filing since December 2025 is our gateway to East India and North India. In July 26, we commissioned two more plants, Patan, Haryana for electric three-wheeler and two-wheeler cases, and Coimbatore, Tamil Nadu for South India. Tamil Nadu GST already active and filing, 4 plants, 3 active GSTs. This is not a plan, this is operational reality. Financial year 26 was the year Zilio became a nationally recognized institution. We listed on the BSE SME platform in October 2025. We became the official EV partner of Punjab Kings of IPL in 2026, delivering brand visibility to hundreds of millions of households at a fraction of traditional advertisement cost. We received AEO T2 certification from Indian Customs, faster clearance, reduced inspections, compounding supply chain and advantages. And we have successfully registered our word mark and device mark under Class 12 with IP India. Our brand is now legally protected. We have incorporated Zilio Auto Components Limited as a whole-owned subsidiary, controlling our component procurement, reducing third-party dependency, and building supply chains resilience. It is already contributing positively to consolidated revenue and profitability. HDFC Bank has extended a consortium-level banking relationship covering the entire Zilio Group, reflecting institutional confidence in our fundamentals. We enter financial year 27 from the strongest position in Zilio's history. In July 2026, Coimbatore plant commissioned, opening South India as a fully dedicated revenue corridor. Patan plant commissioned, scaling our electric three-wheeler business, an entirely new product category from already built infrastructure. We are launching 2 high-speed EV models targeting a 550 plus dealer network across 25 plus states with focused activation in South India and Northeast. In FY27 is the first full year of simultaneously East India and South India revenue from Cuttack and Coimbatore. We are getting more than 125,000 units scale for this year. I am committing to sustaining 75 to 80% year-on-year revenue growth as our structural trajectory. Not a one-time event, but a repeatable engine. The 4 plants are built, the dealers are activated, the geographies are opening, the product categories are launching. Every engine is firing at the same time. We grew at 121% CAGR over 4 years from a small base, sustaining 75 to 80% from here on a larger foundation, wider distribution, and a diversified portfolio is a number grounded in real assets, real capacity, and a market opportunity that is still largely untapped. We will invest in R&D, range enhancement, battery upgrades, connected vehicle features, and will not trade profitability for vanity volume. That has never been the Zilio way, and it never will be. Zilio is a profitable, fast-growing, debt-light, institutionally backed EV company serving the 40% of Indian EV market that everyone else is ignoring. 313 crore revenue, 28.4 crore PAT, 4 plants, 400 dealers across 25 states. Punjab Kings as brand partner, 121% revenue CAGR, 124% PAT CAGR,
debt to equity of 0.18x, zero audited qualifications, zero investor complaints, from 2 geographies to 4, from 1 product category to 3, from a private startup to BSE-listed National Electric Mobility Company, from rupees 12.89 crore to rupees 313 crore in 4 years. We have come a long way, but I want every investor on this call to understand one thing. This is not only the beginning. The best chapters of Zelio story has not yet been written. I will invite your question, ask them direct, ask them hard. Zelio has delivered. Zelio will continue to deliver. Har Ghar Zelio. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants who wishes to ask a question may press star. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Agastya Dave from CAO Capital. Please go ahead. Am I audible? Yes, sir, you are audible properly. Good afternoon, sir. Thank you very much for the opportunity, sir, and congratulations on great set of results, sir. So first of all, I have 2 small requests. One is, sir, given the pace at which we are growing, we are going to be a fairly sizable company soon. So if we can consider moving to quarterly reports, quarterly earnings reports, that would be of great help, sir. Second one is also a small request, sir. It is nothing to do with the company as such, but given the super idiotic rules of the exchanges and SEBI, our stock keeps on getting thrown into periodic call auction repeatedly. And that happens because of God knows what rules these people are implementing. If your company secretary and the CFO can at least lodge a protest in the exchanges against the way in which the stock is repeatedly it has been thrown in periodic call auctions, that would be of great help to the company as well as the investors. So these are small requests. So I have just one major question. Given the exposure that we have to rural areas and tier 2, tier 3 cities, do you expect a bad monsoon to have any kind of repercussion for our growth in the current year? And a related question, sir, this 50 to 75,000 ticket size, given all the things which are working in your advantage, how is the funding environment? Are loans available to customers easily? Are you in any way tying up with any of the NBFCs to provide loans like the other major OEMs do? Or most of these are cash or equity financed? I mean, people are using their own money without borrowing. What exactly is the consumer behavior? That would be of great help, sir. हेलो सर, आपने ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए. एक बार वन बाय वन मैं आंसर करता हूँ. फर्स्टली आपने क्वेश्चन पूछा कि क्वार्टरली हम सबमिट करना चाहिए हमें रिजल्ट्स. तो क्या है कि हमें मैंडेटरी है, हम अभी हाफ ईयरली कर रहे हैं. बट अभी हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में ही हम लिस्टेड हुए हैं, तो हमें भी अभी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन हम पता लग रही है. हम फ्यूचर के अंदर श्योरली हम क्वार्टरली ही करेंगे, अभी नहीं. हमें थोड़ा टाइम. सेकंड क्वेश्चन था जो पीरियोडिक कॉल वाला है, इससे हमें भी इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ये हम करेंगे, सेबी को भी मेल करेंगे एंड वी वुड आल्सो लाइक हिम सिक्योरिटीज टू आल्सो मेल टू सेबी कि ये बार बार पीरियोडिक कॉल हमारे क्यों हो रहा है बार बार. सेकेंडली, मॉनसून से हमारे व्हीकल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है सर, बिकॉज अवर स्कूटर्स आर वाटर प्रूफ IP67 मोटर्स एंड कंट्रोलर्स. सो मॉनसून से हमारी सेल के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं आता है. थर्डली, क्या आपने जो फाइनेंस ऑप्शन पूछा, तो हमारे पास काफी सारे फाइनेंस ऑप्शंस हैं. हमारा बजाज से टाई अप है, हमारा कोटेक से टाई अप है, ट्रसेरा फाइनेंस है एंड देयर आर मेनी मोर फाइनेंस. तो टियर 1 सिटीज एंड टियर 2 सिटीज में प्रॉपर फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए. और क्या क्वेश्चन था सर आपका? मानसून वाला क्वेश्चन मेरा वाटर प्रूफिंग के हिसाब से नहीं था सर. मानसून वाला था कि कस्टमर की इनकम इफेक्ट होती है, क्योंकि रूरल एरिया में एक्सपोजर है, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम या रिलेटेड इनकम कम होती है तो उनका डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कम हो जाता है, ऑटो सेल्स में थोड़ा सा हिट पड़ता है.
तो ये आपको लगता है सर आपके लिए एक फैक्टर रहेगा या नहीं रहेगा सर? कोई रिस्क लग रहा है अभी आपको? सर हर साल क्या होता है कि ये नॉर्थ इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत मानसून की वजह से एवरी टाइम कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आता है, तो वो कंसिडरेबल होता है। ऐसा मतलब हर साल ही, मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल दिस ईयर इज न्यू समथिंग न्यू। हर साल ही क्या है, मानसून और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता ही आता है एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन उससे सेल्स कभी इम्पैक्ट नहीं होती। हाँ थोड़ी मतलब ये होती है कि लेट हो जाती है, मतलब दिस मंथ नहीं है तो नेक्स्ट मंथ, बट सेल्स कभी भी नंबर्स इम्पैक्ट नहीं हुए सर। अच्छा सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे कुछ और क्वेश्चन है लेकिन आई विल गो बैक इन द क्यू एंड कम बैक अगेन सर। ऑल द डन बेस्ट सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Kushal Kasliwal from Inved Research. Please go ahead. श्योर, थैंक यू सर। आपके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में आपने यूनिट सेल्स नहीं बताया, तो H2 में यूनिट्स कितने सेल हुए हमारे टू व्हीलर्स के, और हमारा यूनिट सेल्स पूरे FY26 में कितने हुए, और FY27 और 28 में यूनिट्स का क्या गाइडेंस है अपना? सर मैं आपको स्टार्टिंग से 22 सभी इन्वेस्टर्स के लिए ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने स्टार्टेड द कंपनी, हमने 2022 में 3000 प्लस स्कूटर्स करे हैं। इन 22 टू 23 फाइनेंशियल ईयर में हमने मोर देन 10,000, 23-24 में मोर देन 21,000, 24 टू 25 फाइनेंशियल ईयर में हमने मोर देन 38,000 करे थे, एंड दिस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हमने मोर देन 70,000 करे। फर्स्ट हाफ में H1 के अंदर हमने 30,000 करे थे, एंड नेक्स्ट H2 के अंदर हमने मोर देन 40,000 करे हैं। गॉट इट सर, ग्रेट। और गाइडेंस नेक्स्ट ईयर के? नेक्स्ट ईयर हमने जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्ट में बताया, मोर देन 1,25,000 की हमारी प्रोजेक्शन है। और सर ये जो 1,25,000 है, ये हम 1,25,000 1,25,000 ये उड़ीसा में एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है, और या अपना जो नॉर्मल हरियाणा में जो फैसिलिटी है उसकी वजह से भी हो रहा है? ऑल ओवर हो रहा है। देखो उड़ीसा होने से हमें सपोर्ट तो मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस में काफी उनको रिलीफ मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहां से भी सेल्स ग्रो कर रही है और हमारी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई है। तो ओवरऑल सब सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही ये नंबर्स आ रहे हैं। सर उड़ीसा और अभी हरियाणा वाली फैसिलिटी में कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी की? हरियाणा की जो कैपेसिटी है सर वो 1,20,000 की है पर एनम, और उड़ीसा 60,000 पर एनम। गॉट इट, गॉट इट। और सर डीलरशिप एक्सपेंशन क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? डीलरशिप अपने, आई एम श्योर अपन इतना ग्रोथ कर रहे हैं तो उड़ीसा साइड में अभी हमारे मोर देन 400 डीलर्स हैं, एंड दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड इट टू मोर देन 550 डीलर्स। गॉट इट सर, गॉट इट। सर कुछ बुक कीपिंग क्वेश्चंस थे मेरे। अपनी बैलेंस शीट में देयर इज अ लोन एंड एडवांस फिगर ऑफ अराउंड 1 सेकेंड, वो किस चीज का है सर? लोन एंड एडवांस का फिगर अराउंड 43 करोड़ रुपीस का लोन एंड एडवांस दे रखा है, वो किस चीज से रिलेटेड है? एक मिनट होल्ड ऑन करिए, CFO शुभम जी इज विद मी, he will assist you. Hi. Good afternoon. Thank you for joining us. We value your interest in our company. Actually, these short-term loans and advances are also the advances that we had paid to our suppliers. Actually, we had paid some advances to our suppliers for some cost cutting and economies of scale, and there are some capital advances for our new plant that we had paid to some suppliers for plant and machinery. These are the large factors. So can you quantify this capital wala and what suppliers wala? Actually, the advances to suppliers are of around 22.5 CR and capital advances of 25 lakhs, and there are some advances to GST and custom authorities of 19 lakhs. Actually, 19 crores, sorry. Actually,
we have inverted tax rate in GST. So we have applied for GST refund, and these GST and custom refunds are of 19 CR, totaling 42.6 CR. Understood, sir. Got it. Sir, my next question was on tax rate. We have a current tax rate of around 17%. So Yeah, is this effective sustainable? tax rate is 17%. Actually, we are applied for 115 BAB. Okay, so ये कब तक चलेगा सर 17% का टैक्स रेट? How many For years 10 years. Got it. So Actually, after 10 years from 2021. So we have 5 more years left. got it, sir. Thank you so much. I'll come back in the queue. Thank you so much, sir. Thank you. The next question is from the line of Rajesh Gupta from Krishna Motors. Please go ahead. नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि अपने ये जो आप 3 व्हीलर लाइन को आप साथ में ऐड कर रहे हो, इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स तो बेटर होंगे ही होंगे, लेकिन अपने ये बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट हो जाएगा 2 व्हीलर से। उसके लिए अगर आप का ध्यान ज्यादा अपने इसकी इकोनॉमीज में लगाना पड़ गया और 2 व्हीलर से आप साइडवेज होते चले गए, तो हो सकता है बिजनेस पे काफी इफेक्ट पड़े। और सेकंड क्वेश्चन की अपने लो कॉस्ट सेगमेंट में जो स्कूटर्स वगैरह आ रहे हैं, आई एम आल्सो इन दिस बिजनेस, पर उसके हिसाब से कल को अपने कंपटीशन जो अराइज होगा, उसमें हम अपने एक्सक्लूसिव शोरूम खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं और खाली डीलरशिप पे डिपेंडेंट है, इसमें फ्यूचर अपने आप कैसा बताते हो, जानना था मुझे। फर्स्टली जो आपने 3 व्हीलर का क्वेश्चन पूछा, उसके लिए हमने क्या है कि जो 3 व्हीलर का प्लांट है वो सेपरेट बनाया है और उसकी टीम भी जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट है। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 व्हीलर के ऊपर से अपना मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 3 व्हीलर पे कर रहे हैं। और जो हमने अभी रिसेंटली जो हमारे सीईओ हायर हुए हैं दिव्यांशु अग्रवाल जी फ्रॉम नावी, उनको स्पेसिफिकली हमने 3 व्हीलर पे कॉन्सेंट्रेट करवाया है कि आप 3 व्हीलर को डेडिकेटली उसको लीड करिए। तो 3 व्हीलर की टीम भी हमारी प्रॉपरली अलग है और 2 व्हीलर की अलग है। और जो हमने लास्ट ईयर आईपीओ भी करा था, तो मेजरली हमने जो फंड्स प्लांट एंड मशीनरी मतलब जो था वो मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो करा था वो 3 व्हीलर के लिए करा था। तो ऐसा नहीं है कि हमने 2 व्हीलर का हमने फंड्स भी अलग से डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, 3 व्हीलर का सेपरेटली है, टीम भी अलग है और प्लांट भी डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है 3 व्हीलर की वजह से कभी भी 2 व्हीलर की सेल्स अफेक्ट नहीं होगी। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन था कि अभी हम सर अगर ऐसे डीलरशिप्स ही खोलनी होती तो हमारे अभी मोर देन 1000 डीलरशिप्स होती, बट हमारा कीन फोकस है हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी। दैट्स वाई इस ईयर हमने आईपीएल भी करा, पंजाब किंग्स में आईपीएल भी करा हमने, और हम अभी मेटा एड्स पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, ब्रांडिंग होर्डिंग्स पे अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए। तो हम जो शोरूम्स हैं वो हमारे अभी तक 70% ऑफ द शोरूम्स जो है वो एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं, एंड जो बाय दिस ईयर 100% ऑफ द शोरूम जितने भी डीलरशिप होगी वो 100% एक्सक्लूसिव होंगी। और सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है कि अपने जो कोयम्बटूर प्लांट आप लगा रहे हो, उसका जो एक्सपेंशन रोल है उसमें आप कितने 2 व्हीलर्स बनाओगे और वेस्ट की तरफ कब जाओगे? जो कोयम्बटूर प्लांट हम लगा रहे हैं जो नेक्स्ट मंथ से ऑपरेशनल हो जाएगा, उसकी ऑलमोस्ट कैपेसिटी सर सेम है जो ओडिशा प्लांट 60,000 पर एनएम की कैपेसिटी है। और साउथ के अंदर ये हमारे लिए एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ा मतलब स्टेप है। हाँ जी, साउथ को ये प्लांट कितना बड़ा आप रख रहे हो? क्योंकि साउथ के अंदर तो डिमांड मेरे हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए जो आपकी कैपेसिटी। आप अभी तो सर इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग है, स्टेप बाय स्टेप हम आने वाले टाइम, अभी हमारी कैपेसिटी सर आप ये देखो ना कि हमारी 72,000 कैपेसिटी थी एंड विद इन 1 ईयर हम 2,40,000 कैपेसिटी पे पहुंच गए हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने लास्ट ईयर 70,000 व्हीकल्स करे हैं, मोर देन 70,000 व्हीकल्स। और इस साउथ कोयम्बटूर की फैसिलिटी बनाने के बाद हमारी कैपेसिटी 2,40,000 व्हीकल्स की हो जाएगी। एंड फ्यूचर के अंदर हमारे इस साल का प्रोजेक्शन मोर देन 1,25,000 व्हीकल्स का है। एंड फ्यूचर के अंदर अगर इस साल हम 1,25,000 मोर देन श्योरली अचीव करेंगे। एंड साइड बाय साइड कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग्स भी हैं बड़े प्लांट्स की, बट इनिशियली हम इसको कम से कम एक बार स्टार्ट तो हुआ
हमने कम से कम साउथ के अंदर हमारी प्रेजेंस बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। फोकस आप मॉडल्स बढ़ाने पे करोगे या फिर अपने सेल बढ़ाने पे? तो सेल बढ़ाने पे है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मतलब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट डिमांड क्या कर रही है। मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज है, हर कैटेगरीज को एंटरटेन करना है। स्टूडेंट्स भी हैं, गिग वर्कर्स भी हैं, होम मेकर्स भी हैं, एल्डर्स भी हैं। हमें जहाँ लगता है कि इस कैटेगरी से हमें सेल्स मिल सकती है और इस कैटेगरी के अंदर डिमांड अच्छी है, तो हम उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मॉडल्स बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस मॉडल्स बढ़ाए जा रहे हैं, हम हर कैटेगरी के लिए मॉडल लाते हैं। जी जी। Sorry to interrupt. We will request Mr. Rajesh Gupta to please rejoin the queue. Thank you. The next question is from the line of Mukul Agarwal from Param Capital. Please go ahead. हेलो कुणाल जी, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई है वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के बाद। एकदम आपका जो गाइडेंस और आपका जो ओपनिंग था वैसा ही मेरे को लगा। 75-80% ग्रोथ मेंटेन एंड 120% कैगर सिंस लास्ट 3-4-5 years। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी प्राउड शेयर होल्डर लुकिंग एट योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मेरे 3-4 सवाल है, मैं एक में ही पूछ लेता हूँ, नहीं तो मैडम पूछने नहीं देगी बाद में। आपको जैसा जवाब देने में सुविधा तो आप दे सकते हैं। सो एक तो सी गिवन ये जो ऑयल क्रूड प्राइसेस बढ़ गई, अपने एनर्जी सिक्योरिटी का एक थ्रेट इंडिया में हो गया, और अब पीएम इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल्स एंड बिग फोकस ऑफ गवर्नमेंट इस पे है। तो ईवी में बहुत ट्रैक्शन हमको दिख रहा है, जैसे हाई स्पीड ईवी व्हीकल्स में। तो एक बिग पिक्चर आपका मैं उस पे भी जानना चाहूंगा, हाउ यू सी ईवी इकोसिस्टम किस तरह से इंडिया में प्ले आउट होगा, और आपके इस पे कैसे ये सेल्स हो रहा है। और अगर नोइंग यू नाउ कि यू आर अराउंड 30 year old और जो हिसाब से आप बैटिंग कर रहे हो, तो 10 साल में ये किस तरह का बन सकता है, और ज़ीलियो किस तरह से 10 साल में ये कंपनी को आप देखते हो अगले 5 से 10 साल में। एंड सी टू व्हीलर ईवी में जो टॉप 3 प्लेयर है, जैसे टीवीएस का अराउंड 28-29% मार्केट शेयर है, बजाज का अराउंड 23-24% मार्केट शेयर है, फिर एथर का 18 से 20% मार्केट शेयर है, और फिर उसके बाद हीरो और उसके बाद ओला। तो टॉप 3 का 20% से 30% इंडिविजुअली मार्केट शेयर है। आपने कहा कि ये जो लो स्पीड में 8 से 10 लाख व्हीकल बिकती है हर साल, और अपने ये साल 1,25,000 बेचेंगे, तो समझो ये साल मार्केट भी ग्रो होगा 15 से 20%। तो 11-12 लाख में आप 1.25 लाख बेच लोगे, तो आपका लगभग 10 से 11% मार्केट शेयर हो गया। तो क्या ये मार्केट शेयर 5 से 10 साल में आपका भी 25% के ऊपर जा सकता है क्या? देन लास्ट क्वेश्चन इज फॉर दिस, अपने चैलेंजेस क्या है? क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि चाइना से इंपोर्ट के लिए चाइना भी अब रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो डजंट लाइक है, विच इज वेरी फेयर। हमको बनना है, तो आपकी क्या तैयारी है? जितने भी अपने इनपुट्स है, जो इंक्लूडिंग सेल, कितना % अपन इंडिजिनाइज इसको कर सकते हैं, आगे जाके कैसे अपन देखते हैं? तो आई एम वेरी हैप्पी यू गॉट अ प्रोफेशनल CEO इन द कंपनी, विच इज अ वेरी गुड स्टेप। तो किस तरह से आप इसको बिल्ड करोगे, ओवरऑल होलिस्टिक व्यू में जानना चाहता हूँ। थैंक यू, बस यही था सर। आपने बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, एक ही बारी में सब पूछ डाला, लेकिन मेरे को बहुत आपको जितना सहूलियत और टाइम हो उस हिसाब से आप जवाब दे सकते हो। वी कैन टेक। नहीं, मैं सभी आंसर करना चाहूंगा। मेरा कहने का तो सर यही है कि है ना, जो मतलब मेजरली क्या है कि अभी ये क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से हमें बहुत बड़ा वो एडवांटेज मिला है, क्योंकि है ना, देखो फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक है ही, बट ये क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से एकदम से है ना, जैसे हमारे पीएम ने भी रिक्वेस्ट करी है कि सब आप रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाओ, मतलब ईवी को स्विच करो। तो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा बूम आया हुआ है एंड पीपल आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड अब ये श्योर है सर कि मार्केट जो है वो बहुत 20-25% बढ़ेगा। और हम अभी इस ईयर मैंने 1,25,000 कहा है, तो डेफिनेटली हम मार्केट के अंदर मोर देन 10% शेयर एक्वायर करेंगे। एंड और सर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, 5-10 साल में नहीं सर,
विदिन 2 to 3 years ही हम मोर देन 20-30% एक्वायर कर लेंगे इस ईवी मार्केट का। क्या बात, मतलब हमारा विजन क्लियर है सर। मतलब जैसे ईवी मतलब जीलियो, हमारा मोटो यही है, हर घर जीलियो। और हमारा फोकस हाई स्पीड मार्केट पे भी है और लो स्पीड मार्केट सर बैकबोन है इंडियन मार्केट की। आने वाले टाइम में भी जितना हाई स्पीड होगा उससे मैक्सिमम 2 times हमेशा लो स्पीड सेल होगा, बिकॉज लो स्पीड इजीली अफोर्डेबल स्कूटर है और मतलब मिडिल क्लास कैटेगरी को लो स्पीड ही, मतलब जो ईवी के अंदर ग्रोथ आ सकती है वो लो स्पीड के थ्रू ही ग्रोथ आ सकती है। सेकेंडली इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो सर हम बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं। हमने इस साल मतलब पिछले साल तक जब हम आईपीओ लेके आए थे तब मैं आपको बताया करता था कि हमारे 2 व्हीकल जो है वो इंडिजिनस हैं। बाय 2027 मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, हमारे 5 to 6 व्हीकल्स होंगे जो प्रॉपरली 70 to 80% मेक इन इंडिया होंगे। और 3 व्हीलर प्लांट स्टार्ट होने के बाद सारी फैब्रिकेशन हमारी इन हाउस होगी। तो ईवी मतलब आने वाले टाइम में सर लो स्पीड और हाई स्पीड बोथ ही, मतलब लेकिन लो स्पीड मेजरली बहुत बड़ा वो बनने वाला है। अभी जो हमें हर्डल्स आ रही हैं वो बस वो यही है कि सर लोगों को अभी लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसके लिए हम ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं। अभी मार्केट के अंदर जो मतलब लोगों को पता लगे कि विच स्कूटर इज वैल्यू फॉर मनी एंड बेस्ट टू बाय, हम उसके लिए प्रमोशंस कर रहे हैं। एंड अभी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, ईवी को एनकरेज कर रही है। तो डेफिनेटली सर मतलब आने वाले टाइम में ये सेगमेंट बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत ज्यादा एक्सेस में बड़ा बनने वाला है। और जो स्कूटर इंडस्ट्री है, जो 2 व्हीलर इंडस्ट्री है, 2 व्हीलर में स्पेशली जो स्कूटर इंडस्ट्री है, वो मुझे लगती है कि सर आने वाले 5 साल के अंदर 70 to 80% जो आईसी इंजन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक के अंदर। और उस इलेक्ट्रिक के अंदर वी विल बी द इन लो स्पीड एंड हाई स्पीड बोथ वी विल बी द लीडिंग प्लेयर्स। यार चाइना में ऑलरेडी हो गया 2 out of 3 2 व्हीलर ईवी हो गया है, तो 65% हो गया, तो इंडिया भी हो ही जाएगा। और एडवर्टाइजिंग बजट फिर कुणाल अपना फैक्टर्ड इन है, अपन कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स कर पाएंगे? और ये रिजल्ट में आई बिलीव कि आपका आईपीएल एक्सपेंसेस के बाद में ये प्रॉफिट आया है जो आया है। नहीं सर, आईपीएल के एक्सपेंसेस इस साल में डलेंगे, बिकॉज क्या था एज पर द ऑडिटर, आईपीएल जो था वो 31 मार्च को स्टार्ट हुआ था फर्स्ट मैच, और वो फिर अप्रैल एंड मई एंड तक चला है। तो एज पर द ऑडिटर उन्होंने कहा कि जो एक्सपेंसेस हैं वो इस ईयर में प्रोपोर्शनेटली डलेंगे। अच्छा, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस में। बट सर वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रमोशन फिर भी बहुत नेक्स्ट लेवल के करने वाले हैं इस साल पे। ब्रांडिंग हमने बजट लिया हुआ ऑलरेडी। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी हैप्पी टू हियर दैट एंड ऑल द बेस्ट। जैसा वैभव सूर्यवंशी चल रहा है आप भी चलते रहो, तो हम लोग को सबको अच्छा रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Ashish Soni from Family Office. Please go ahead. सर अपना ग्रोथ पर्सपेक्टिव अपना चाइना से मतलब सोर्सिंग स्ट्रेटेजी, और बिकॉज सप्लाई चेन इश्यूज बहुत हो रहे हैं, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी उसके लिए? सर हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं सर। हम क्या है कि धीरे धीरे है ना, हम क्या है कि लिमिटेड कंपोनेंट्स जो कि मतलब टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अपना मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, चाहे अपना चाइना हो, चाहे इंडोनेशिया हो। हम मतलब क्या है कि सिर्फ अदर कंपोनेंट्स जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो बल्क कंपोनेंट्स हैं, जो कि मतलब स्पेस ज्यादा लेते हैं, उसको हम बाय दिस ईयर, बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम 100% उसको इंडिजिनस कर रहे हैं, इन हाउस कर रहे हैं। एंड सिर्फ जो स्मॉल कंपोनेंट्स होंगे या फिर जो मेजर कंपोनेंट्स होंगे, टेक्निकल कंपोनेंट्स होंगे, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी रखेंगे और उनको फिर बल्क स्टोर करेंगे, ताकि हमें कभी भी कोई किसी भी मंथ अगर शिपिंग लाइन या सप्लाई चेन इश्यूज आते हैं तो वो हमें इफेक्ट ना करे हमारे बिजनेस को। ओके, और मार्केटिंग स्पेंड क्या प्लान है इस साल का और नेक्स्ट ईयर का? कितना क्वांटम वाइज, कितना करोड़? इस साल सर मोर देन 1 crore, 1 to 2 crores आफ्टर आईपीएल एक्सपेंसेस। मतलब मैं वो आईपीएल एक्सपेंसेस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ना ही आईपीएल के जो एक्सपेंसेस हुए हैं या फिर जो मैंने उसके लिए मेटा एड्स या फिर प्रमोशंस एंड जो होर्डिंग्स वगैरह करे हैं उसको हटाकर मैं मोर देन 1 crore एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल हम और स्पेंड करने वाले हैं। और नेक्स्ट ईयर?
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का अभी सब डिसाइड नहीं करा सर। पहले अभी तो क्या है कि आज के मैच की बैटिंग कर लेते हैं, नेक्स्ट मैच की बाद में। ओके। और ये गवर्नमेंट जब ईवी प्रमोट कर रहा है तो आपको लगता है कि 3 व्हीलर सेगमेंट में भी आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं? श्योरली सर, मतलब ये 3 व्हीलर के अंदर भी बहुत अभी क्या है कि 3 व्हीलर जो है वो नॉर्थ इंडिया में ही है, धीरे धीरे वो ईस्ट और साउथ में भी कन्वर्ट होगा, तो अभी उसके अंदर एक्सपेंशन के लिए बहुत है। तो आपको लगता है वो ज्यादा तेज ग्रो करेगा 2 व्हीलर से, कि मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, टू व्हीलर साइमल्टेनियसली टू व्हीलर ज्यादा कर रहा है अभी, बट फ्यूचर में 3 व्हीलर भी मतलब साथ ही साथ ग्रो करेगा सर। चलिए सर, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Darshil Jhaveri from Crown Capital. Please go ahead. Hello. Good afternoon, sir. Thank you so much for taking my question, sir. Firstly, sir, congratulations on a great set of results. सर मेरे को सिर्फ ये पूछना था कि अभी जैसे हम लोग इतना स्केल अप कर रहे हैं तो हम लोग का मार्जिन, हम लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है? ऐसा है कि थोड़ा बहुत हम लोग मार्जिन स्टेबल रखेंगे और मार्केटिंग ब्रांड बिल्डिंग में ज्यादा खर्चा करने का विचार है, या फिर क्या प्लान है सर? हम लोग आगे जाके, अभी ये साल में तो 11% मार्जिन है, आगे जाके क्या प्लान है मार्जिन का सर? नहीं सर, हमारा हम कितना ही एक्सपेंड करें, कितना ही हम बजट रखें, बट हमारा फोकस यही है कि हम प्रॉफिटेबल और मार्जिन्स को सिमिलर ही रखेंगे। हमारा हमारी कोई भी वो नहीं है कि हम इसको कम करेंगे या डिडक्ट करेंगे या रिड्यूस करेंगे फॉर ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। मतलब लेकिन हम जितना भी करेंगे, जितना भी एक्सपेंड करेंगे, हम हर साल 2x करते आ रहे हैं, 2x to 3x, हम इस साल भी वही करेंगे। और हम ब्रांडिंग एंड प्रमोशन भी करेंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर भी बहुत करा, बट इम्पैक्ट नहीं आने दिया, और इस साल भी वही सिमिलर रहेगा। हम ब्रांडिंग एंड प्रमोशन जो भी करें, हम अपने EBITDA या फिर पैट या CAGR पे इम्पैक्ट नहीं आने देंगे। अच्छा, ओके ओके ओके, फेयर इनफ सर। और सर दूसरा, अभी हम लोग ये सब डीलरशिप और वो सब चीज करें तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आपको क्या लगता है, मतलब मार्केट में कैसा है? लाइक इसकी वजह से हमारा क्या इम्पैक्ट आ सकता है कंपटीशन की वजह से? कि आपको लग रहा है कि अभी जैसे नया मार्केट साउथ में जा रहे हैं तो उधर एक थोड़ा न्यू एंट्रेंट है, थोड़ा प्राइसिंग हमको कम करना पड़ेगा, फिर कैसे लगता है आपको कंपटीशन सर? सर प्राइसिंग कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वहां पर जब हमारा प्लांट ओपन हो जाएगा तो जो हमारी अभी तक प्राइस लिस्ट थी फॉर साउथ इंडिया वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वहां पर कम हो जाएगी। जो हमने वो जियोग्राफी वो ओपन ही इसलिए करी है ताकि हम जो है कस्टमर, हमारे डीलर्स को एक अच्छे प्राइसेस दे सके, लेकिन उससे हमारे क्या है कि हमारा जो एबिटा है वो इफेक्ट नहीं होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस होगी वही उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, जो हमारी सेल्स को वहाँ ग्रोथ देगी। अच्छा, ओके ओके, फेयर इनफ सर। एंड सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन सर, हम लोग का जो एवरेज ऐसा सेल्स प्राइस है रफली आई थिंक अराउंड 44,000 है, तो ये आगे जाके आपको क्या लगता है क्या रेंज में हो सकता है? बिकॉज यूनिट वाइज तो हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, बट जैसे हम लोग शायद से 3 व्हीलर लाएंगे, थोड़ा हायर एंड सेगमेंट लाएंगे, तो अपने को यही रेंज रखना है कि थोड़ा ग्रोथ इसके अंदर भी हम देख सकते हैं सर? 45 to 50 जाएगा सर इन अपकमिंग। Okay, okay, fair enough, sir. Right. Okay. Yeah, that's it from my side, sir. Thank you so much, sir. All the best. थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Deepak Pruthi from Wealth with Wisdom. Please go ahead. हाय कुणाल जी, बहुत अच्छा लगा आपकी, स्पेशली जो आपकी एनर्जी से भरी पिच एट द बिगिनिंग ऑफ कॉल सुनी, इट वाज वेरी एक्साइटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। कुणाल जी, एक क्वेश्चन है ऑन सर्विस। जैसे जैसे आप एक्सपैंड करेंगे, आई एम श्योर आप डीलरशिप्स भी बहुत बनाएंगे, और आप आई एम श्योर यू विल हैव स्टार्ट क्लॉकिंग ह्यूज नंबर्स, बट इसके साथ साथ सर्विस टीम पे क्या कर रहे हैं आप टू इंश्योर कि वो जो सर्विस टर्न अराउंड टाइम है वो मिनिमम रहे? हमने सर इसके लिए क्या है कि है ना, हम अपने प्लांट्स के अंदर ताकि डीलर्स को कोई भी क्वालिटी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, हम क्वालिटी इन क्वालिटी आउट मेंटेन कर रहे हैं। PDI टीम्स हमने स्ट्रॉन्ग कर दी है। सर्विस इंजीनियर लास्ट ईयर हमारे पास 4 थे, नाउ हमारे पास इन द मार्केट मोर देन 10 सर्विस इंजीनियर्स है। और जीलियो ऑटो कंपोनेंट जो हमारी फुली ओन्ड सब्सिडरी है,
वो हमारी इसी मोटिव के साथ खोली गई है कि स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर मिल सके और डीलर्स को मैं पर्सनली फोकस करता हूँ रिप्लेसमेंट एंड स्पेयर पार्ट स्कीम के ऊपर कि किसी भी डीलर्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और हम जो बेस्ट टाइम के अंदर है मतलब मिनिमम टाइम के अंदर उनको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकें। ओके ओके। एक और कुणाल जी एक क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट है हाउ इज इट सपोर्टिंग ईवी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली द लो स्पीड ईवी? अभी तक से गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई सपोर्ट नहीं है फॉर द टाइम। बस गवर्नमेंट का सपोर्ट यही है कि गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है पीपल को टू बाय इलेक्ट्रिक स्कूटर, बट टू कम फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द कंपनी साइड एज सच हमें कोई बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं प्रोवाइडेड है। अदर देन कि वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगते तो दैट्स बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर। हाँ बस वो एक सपोर्ट है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड विदाउट लाइसेंस गवर्नमेंट ने करी। थैंक यू कुणाल जी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Shubhanu Bangal from Three Head Capital. Please go ahead. हेलो, होप आई एम ऑडिबल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, हमारा जो थ्री व्हीलर को लेकर जो सपना था, जो हमारा थ्री व्हीलर वर्टिकल भी ग्रो होगा, तो FY26 में कितना वॉल्यूम किया है थ्री व्हीलर वर्टिकल? FY26 में सर हमने 800 नंबर्स करे हैं सर। ओनली 800? ओनली 800 बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट रेडी नहीं था। फ्रॉम दिस मंथ हमारा इन हाउस फ्रॉम मतलब दिस 26-27 फाइनेंशियल ईयर हमारा पाटन प्लांट रेडी हो जाएगा फॉर थ्री व्हीलर, देन आपको एक अच्छे नंबर्स हम देंगे। तो FY27 में हम कितना टारगेट कर रहे हैं? मोर देन 2000। ओके। और जो हमारा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, डीलर नेटवर्क पर हमारा अभी डीलर नेटवर्क हमने जो बोला 400 समथिंग, तो कितना एक्सपेंड होकर कितना होगा FY27 और नेक्स्ट 2 to 3 मोर देन 550 डीलर्स सर। नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में कितना होगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, दिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 550 हमारा टारगेट है कि 550 डीलर्स होंगे कंपनी के अंदर, मोर देन 550 प्लस डीलर्स। अभी 400 मोर देन 400 है, तो 100 to 150 डीलर्स हम नए बनाएंगे। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Gagandeep Singh, an individual investor. Please go ahead. Hello, Kunal ji, congratulations for the numbers. My question Thank you, is sir. that are we going to venture in the bike segment also? सर अभी तक कंपनी के कोई प्लान्स नहीं है बाइक सेगमेंट में एंटर करने के, क्योंकि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बाइक सेगमेंट के अंदर स्केल अप नहीं दिखता सर, क्वांटिटी स्केल। बिकॉज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर अभी रिसेंटली अभी के लिए सर क्या है कि जो टू व्हीलर स्कूटर है वो एक मतलब क्या है कि 50 to 60 किलोमीटर के लिए है। जब तक अभी बैटरी प्राइसेस के ऊपर गवर्नमेंट कोई मतलब पॉलिसी नहीं लाती कि गवर्नमेंट के अंदर कोई सब्सिडी बैटरी लिथियम आयन बैटरीज या LFP बैटरीज के ऊपर एक सब्सिडी नहीं आती, तब तक बाइक सेगमेंट का स्केल अप होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है सर। सो अभी कंपनी के कोई प्लान्स नहीं है बाइक सेगमेंट के लिए। इन फ्यूचर में भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आ जाए जिनसे बैटरी जो ईवी बैटरीज हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, अगर वो थोड़ी सी अफोर्डेबल प्राइस में हुई देन ओनली बाइक सेगमेंट हो सकता है। क्योंकि बाइक सेगमेंट के अंदर क्या है कि बाइक सेक्टर के अंदर उनको माइलेज और उनको मतलब जो लोड कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा चाहिए सर, और उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो काफी ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद कस्टमर कंपैरिजन करने लगता है आई सेगमेंट के साथ। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. With that, I now like to hand the conference over to Mr. Nitin Jain for closing comments. On behalf of Heim Securities Limited, I would like to sincerely thank the Zelio E-Mobility Limited management team and Mr. Kunal Arya
for taking the time to join us today and for responding to all the queries in such a detailed, insightful, and fiery manner. I would also like to thank all the participants for joining this call and for their active participation. With this, I would like to hand over to Rutuja for closing remark. Thank you very much, ladies and gentlemen. On behalf of Zelio E-Mobility Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.